This session is being recorded, and this session is being recorded for those students who are willing to be a part of SKH online English language classes. And today is our first lecture because the previous lecture was an introductory lecture, but today we are starting with our first lecture and with a promise. This is your promise to yourself that, sir, I will remain punctual in classes. मेरा फायदा नहीं है, याद रखिए मेरे पास इतने स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आती है कि अगर मैंने सबको एडमिशन देना शुरू कर दिया तो पता नहीं मैं किसको पढ़ाऊं। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं सिलेक्ट करता हूं जो मुझे लगता है कि हाँ भाई इनको एडमिशन देना चाहिए। फायदा आपका है if you remain punctual, because after 3 months you will have two skills. You will be computer literate and you will have language skills, and on basis of these two skills I am sure that you will be able to find any physical job, because if for when you go for a physical job they ask for skills. Do you have language skills? Do you know how to type? Do you have Excel, MS Word skills? So we offer you MS Office content writing in these 3 months. So I'm sure that you will have a good skills, command on skills after 3 months. So first, promise yourself that perseverance is the key to success, and I will remain persistent. I will remain punctual. I will remain regular. And promise to yourself and keep thinking that these 3 months will change my life. As this 6 months changed my life. When I did my language course, that language course changed my life entirely. I became a language instructor. I kept on teaching, 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 and I have been teaching for 18 years, 16 years physically, 2 years online. I've been teaching online for 2 years almost since COVID started. Don't bunk off, don't take a day off, don't bunk off your grammar, spoken classes, discussion sessions, vocabulary and pronunciation sessions. I will also share the recording of pronunciation session from today onwards, inshallah. Don't make lame excuses. Spend at least 3 hours daily on Zoom. माइंडसेट अपना जहन में कुछ बातें बिठा ले। कुछ बात बच्चे बड़े परेशान होते हैं, सर मैं तो बोल ही नहीं सकती हूँ, सर मैं तो कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं रहा सर। बेटा ऐसा मत कहा करो, जस्ट अपने जहन में एक सोच ले आओ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आज से हर स्टूडेंट अपने जहन में ये बात बिठा ले, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। अब यस, अपने आप को अनम्यूट करें और जरा स्टाइल से बोलकर दिखाइए, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आई कैन, हैंड रेस कीजिएगा, मैं नाम ले लूंगा आपका। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। बिल्कुल ऐसा अंग्रेज लगे कि अंग्रेज भी कहे वाह हम मर जाते हैं। यस सर, हम यस I can speak in English. इंग्लिश में बोलना है ये भी। सदा बिल्कुल अंग्रेज बनना है, बिल्कुल जबान को टेढ़ा कर दे, कोई आपको नहीं देख रहा, मुंह भी टेढ़ा करे, फिर देखेंगे बिल्कुल एकदम जबरदस्त अंग्रेजों वाला निकलेगा जुमला। सदा ट्राई। सदफ की आवाज नहीं आई। यस नेक्स्ट। मैं फिर नाम गलत लूंगा इसलिए मैंने नाम नहीं लिया आज। I can speak in English. Yes, very good. Yes. I can speak in English. घर वाले सुन ना ले इसलिए आहिस्ता से बोला है। मोहल्ले I वाले can speak in English. मोहल्ले वालों तक आवाज जानी चाहिए। I can speak in English. I can speak in English. I can speak in English. I can speak in English.
दो लोग आपस में एक दूसरे से पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज मी राम, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? Excuse me, Ram, can you speak in English? Sadaf, Are can you? you? I am speak in English. Samara, can you speak in English? Sabah, Yes, I can Yes, I speak can. in English. Yes, sir, I can. I can speak in English. कंजूसी नहीं करनी है बोलने में, पूरे पूरे sentences चाहिए. Yes, I can speak in English. I'm getting better at English. I am getting better at English. याद रखिएगा, at English. ये good at English, getting better at English, not in English. I'm getting better at English. मैं इंग्लिश में अच्छी होती जा रही हूँ, right? तंजील, I am getting better at English. कभी ये नहीं सोचना सर मेरी तो इंग्लिश आ ही नहीं रही है सर, 1 महीना हो गया सर, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है. भाई ये मत कहा करें. देखिए, कुछ बच्चे जल्दी इम्प्रूव कर जाते हैं, कुछ बच्चे वक्त लेते हैं, लेकिन आपकी सोच ही होनी चाहिए मेरी अंग्रेजी अच्छी होती जा रही है. आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश. नॉर्मल लोग हैं यार हम लोग, कोई हम में से कोई एबनॉर्मल नहीं है, हम सब नॉर्मल है. हम हमारे जहन बिल्कुल सही काम करते हैं, लेकिन कुछ के बहुत तेज काम करते हैं, कुछ के स्लो. उम्र का तकाजा है, 40 क्रॉस करके कुछ लोग हैं. आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट. और जब ये बोले ना, जब आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट, तो लगे यार दैट यू आर द बेस्ट. ये 4 सेंटेंसेस ऐसे आपको याद करने और हर वक्त आपको जहन में रखना. आप देखिएगा आपकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आएगी. सर इन 4 सेंटेंसेस से, जी बिल्कुल. तावीज बना के भी तो गले में बांधते हैं ना, उस पर कुछ लिखा होता है ना, उसके असरात होते हैं. सेंटेंसेस के भी असरात होते हैं. आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस पढ़े. कभी आप लोगों ने देखा है 5 ईयर होता है, उसके ऊपर टॉप पर अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखी होती है. क्यों लिखते हैं? क्योंकि बच्चा फारिग वक्त में बैठ के वो पढ़ता जरूर है. अच्छी बातें पढ़ेगा तो अच्छे अमल करेगा. ठीक है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आमिर खान सेज ऑल इज वेल. तो उससे क्या सब ऑल इज वेल हो जाता है? नहीं. मुश्किल को झेलने का हिम्मत आ जाती है ना. सो हम लोगों को कुछ चीजें बहुत मुश्किल लगती है. जैसे आप लोगों को घर में काम बहुत मुश्किल लगता होगा. हाउ मेनी ऑफ यू बॉयल मिल्क एट होम? आप में से कितने लोग हैं जो घर पे दूध बॉईल करते हैं? जरा हैंड रेस करके बताइएगा. हाउ मेनी ऑफ यू बॉयल मिल्क एट होम? और ये बात कितने लोगों को मुश्किल लगती है? सर उबलता ही नहीं है. मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा मुश्किल होता है, टिक लगाकर बता दें. मुश्किल अमल है ना. दूध के सर पे खड़े होते, दूध उबल ही नहीं रहा होता, और थोड़ी देर के लिए इधर जाते हैं, दूध फौरन उबल जाता है. फिर अम्मा पीछे चीखते हैं, कहा भी तक अम्मा दूध देख लेना. अम्मी अम्मी तो वहीं खड़ी हुई थी, 1 मिनट के लिए आई थी, एक लम्हा हुआ मुझे. ऐसा होता है या नहीं होता? वैसा ही Yes, sir. तीन लोगों ने कहा मैं सही कह रहा हूँ. कुछ लोग अपनी राय का इजहार नहीं कर रहे, शायद वो किचन में नहीं जाते. Yes, sir, you are right. आई एम राइट. Yes, sir. अब सुने, ये इससे एक फिलोसोफर ने एक फिलॉसफी आपके सामने रखी है. हम जिंदगी में कुछ चीजों को मसला समझते हैं. दूध को बॉईल करना जैसे एक मसला हमारे लिए है. हम कहते हैं यार दूध बॉईल ही नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा. आप एक लम्हे के लिए जाते हैं, हम टीवी के ड्रामे की एपिसोड की आखिरी एपिसोड चलनी है, आखिरी सीन है, आप कि वो मरेगा या जिंदा रहेगा. आप वहां पर होती है, वो मर जाता है या दूध उबल जाता है. अब हुआ क्या, हकीकत में क्या हुआ? यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम. हकीकत में क्या हुआ? यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम. ऐसे ही हुआ ना, आपने एक मसले के बारे में सोचना छोड़ दिया. तो बेटा, लेकिन दूध चूल्हे में रख दिया आपने ताकि मसला हल हो जाए, दूध उबल जाए. नाउ यू हैव टेकन एडमिशन इन योर लैंग्वेज क्लास. ये आपने मसले का हल निकाल लिया. कैसे होता है दूध बॉयल? ऐसे होता है कि आप चूल्हे पे रखते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आती है कि आप एक लैंग्वेज क्लास में एडमिशन ले लें. हो गया मसला. मसला हल नहीं हुआ. अब
इस मसले को मसला मत समझे, डोंट कंसीडर इट अ प्रॉब्लम। बस लैंग्वेज में एडमिशन ले लिए, 2 घंटे क्लासेस ले लिए, बाकी जिंदगी को नॉर्मल रूटीन में गुजारे। ये नहीं कर लिया यार मुझे ये करना है, मुझे यूं करना है, ये सर ने ये कहा था। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल रिलैक्स होके, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट स्पेंड योर लाइफ यूजुअली। मेरा एक मसले का हल था, मेरा थोड़ा, आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन एंड फॉर दिस, बिकॉज ऑफ दिस आई एम लूजिंग माय फिटनेस लेवल। सो मैंने उस मसले का हल क्या निकाला, आई ज्वाइंड जिम। बस मैंने जिम को ज्वाइन कर लिया एंड आई हैव टू गो देयर रेगुलरली। मसले का अब बस हो जाएगा मसला हल। अब मुझे ये सोचना नहीं है यार वजन बढ़ रहा है, अरे यार मैं यूं हो रहा है, अरे नहीं 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 नहीं, यू हैव ज्वाइन अ लैंग्वेज क्लास। मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, मैं कब बोलूंगी, कैसे होगा, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरा क्या होगा, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी बगैर इंग्लिश बोले। नहीं भाई, क्या हो गया? Philosopher is saying that stop thinking about a problem, stop thinking about a problem. You consider English language is a problem. No, this is not a problem. You have found a solution, you have joined a class. अब क्लास को ज्वाइन कर लिया, your problem will automatically solve. But you have to be regular. अब ये नहीं कि आपने दूध चूल्हे में तो रखा लेकिन चूल्हा बंद कर दिया और ड्रामा देखने चली गई, उबल जाएगा, उबल ही जाएगा। समझ रहे मेरी बात, कि दूध आपने चूल्हे में रख के चूल्हा बंद कर दिया। तो आपने क्लास ले ली और रेगुलर होना, मतलब क्लासेस अटेंड नहीं कर रही आप, एडमिशन लेके छोड़ दिया, तो ये तो वही बात होगी, चूल्हा दूध पे चूल्हा रख के छोड़ दिया, तो चूल्हे में दूध रख के छोड़ दिया, एडमिशन लेके क्लासेस लेना छोड़ दी। भाई गैस तो जलाओ, थोड़ी मेहनत तो करो, वक्त तो लगाओ, then you will receive the result, but stop thinking of a problem. So this is the motivation for all of you for this month, and I'm telling you that you can speak in English within 3 months. 3 महीने में तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेंगे, 1 महीने में आपकी जबान और आपका जहन खुल जाएगा, ठीक है ना? Thinking of doing something is the first step of achievement. कुछ करने के बारे में सोचना ही कामयाबी की पहली चाबी होती है। बेटा सोचना तो शुरू करें आज से, सोचे तो I can do it. Thinking of doing something is the first step of achievement. आज अगर आज से आपने सोच लिया कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आपने अचीवमेंट कर लिया। I will speak English in 21 days. फीस तो जमा करा दी है फर्स्ट मंथ की, अब क्या करें? अब बस अच्छा सोचे, मैं 10 दिन 21 दिन में इंग्लिश बोलूंगी। ये मत सोचिएगा मैं 10 दिन में मर जाऊंगी। हकीकत है, ये एक कहानी में पढ़ चुका हूँ, किताबें पढ़ते रहते थे पहले, अब तो फेसबुक ही पढ़ते हैं या बेगम की सुनते हैं। यू विल डाई इन 10 days। एक बंदा था, उसको किसी ने मेले के अंदर एक चिट्ठी दी, वो होता है ना एस्ट्रोलॉजर, एक फाल निकाली, या हमारे यहाँ होता है फाल निकालने, तोते ने फाल निकाल के दे, लेकिन तू मर जाएगा भाई 10 दिन में। यकीन करें 13वें 14वें दिन वो मर गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन ही पता चला वो झूठा था, लेकिन उस इंसान की सोच में एक बात आ गई थी, मैं मर जाऊंगा, एंड ही डाइड। तो बेटा अपनी सोच में बिठा लो, आई विल स्पीक इंग्लिश इन 21 days। तो आज से कौन कौन लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई सर आई विल स्पीक इंग्लिश इन 21 days, मैं बोलूंगी इंग्लिश 21 दिन में, 21 दिन इंग्लिश। सोच में लावे नहीं हो सकता सर, क्या हो गया, कैसी बातें करते हैं, 21 साल मेरी जिंदगी कैसे गुजर गए, अंग्रेजी आई नहीं। तो बेटा अब 21 दिन में आ जाएगी। कोई ऐसा इंसान भी नहीं मिला होगा जिसने ऐसा मोटिवेट किया। हाँ ये बात भी है। देखिए जिंदगी में यू टर्न्स आते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द यू टर्न ऑफ योर लाइफ। आप अपने आप को खुद बदलते हैं। याद रखो, इंसान अपनी तकदीर को खुद लिखता है। अगर मैं कहता हूं जिंदगी में सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, तो दुआ मत मांगा करो ना नमाज के बाद। क्यों मांगते दुआएं रो रो के? इसका मतलब इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, दुआ मांगता है और उस चीज को अपनी जिंदगी में लेकर आ जाता है। इतना यकीन होता है ना भाई, हमारी दुआ के अंदर इतना असर होता है कि हम वो चीज हमें मिल जाती है। जब भी तो हम दुआ मांगते हैं। अगर आप दुआ की, सिर्फ दुआ के बारे में रिसर्च कर लेना, तो आप जो चीज मांग रहे होते हैं वो आपको मिल रही होती है।
तो बेटा मांगो तो मांग के तो देखो, ना मिले तो फिर कहना। तुम पुकार के तो देखो, ना सुने तो फिर कहना। बहुत सारे मैंने जुमले कहीं लिखे हुए देखे थे ये, तो उसमें यही लिखा था, तुम मांग कर तो देखो, ना तुम्हें नवाजे तो फिर कहना। तो बेटा मांगो, अपने लिए मांगो, एंड डेफिनेटली यू विल रिसीव इट। इंसान सच्चे दिल से जो चीज के लिए मेहनत करता है वो उसको मिल जाती है। बस हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, पुश नहीं मिलते हैं जिंदगी में। मोटिवेशन इज द की फैक्टर। आपको क्या लगता है लैंग्वेज क्लासेस लेने से आपको अंग्रेजी आएगी? आपको ये हर 15 दिन बाद ये वाली जो एपिसोड आज चल रही है ना, ये एपिसोड से अंग्रेजी आएगी, ठीक है ना? आपको मोटिवेशन चाहिए, कोई आपको मोटिवेट करे, पुश करे। मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ फ्री में, मेरी मोटिवेशन, मुझे किक मिलती है। सलमान खान कहते हैं ना, किक चाहिए, हमें किक पड़ती है वहां से। क्यों? जब मैं वो फीडबैक्स बच्चों के पढ़ता हूँ, दैट इज द मोटिवेशन फॉर मी। इतने अच्छे फीडबैक्स आते हैं स्टूडेंट्स के, जबरदस्त, इम्प्रेसिव, बस ये चाहिए। तो हर इंसान को ये चाहिए। तो इन सारी बातों से, अच्छी अच्छी बातों से आज के पहले लेक्चर का आगाज करते हैं। पिलर्स ऑफ इंग्लिश। सर अल्लाह का ये भी बता दीजिए, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेटा अंग्रेजी तो मैं सिखा दूंगा, मुझे मतलब इतना यकीन है अपने ऊपर कि आई विल मेक यू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन मुझे आप लोगों के ऊपर यकीन नहीं है कि आप लोग मेरे साथ 3 महीने रोकेंगे या नहीं। कि मैं लिख कर दे दूं, आप चाहे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारी कौम के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। जो लोग मेरे इस रिकॉर्डेड सेशन को सुन रहे हैं, वो भी आप इस बात को जहन में रखें कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है हमारे अंदर। हम 3 महीने तक किसी काम को लगकर नहीं करते, 1 महीना करते हैं, उसके बाद कहते हैं, चलो भाई पका रहे हो, नहीं भाई नहीं कर सकते, अरे यार ये मसला है, इस महीने पैसे नहीं है। यार देखो, ऐसे नहीं है, 1 हफ्ता देर हो गई, बच्चे ऐसे भी है 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते डिले कर देते हैं। लेकिन एक बच्चे की जो रेगुलर होता है ना, हम उसको अभी आउट नहीं करते अपने सेशन से। लेकिन एक बच्चा आ ही नहीं रहा, फिर उसको हम आउट करते हैं, हमें क्यों निकाला? अब भाई तुम क्लास ही नहीं ले रहे, ना फीस जमा कराइए, तो फिर अल्लाह हाफिज कर लो। रेगुलर हो, मेहनत कर रहे हो, फिर हमें महसूस होता नहीं यार ये बच्चा मेहनत कर रहा है, करने दो इसको, आ जाएगी फीस, आज नहीं तो कल नहीं देगा। ऐसे भी बच्चे जो 3 महीने पढ़ के चले गए, अब उन्होंने एक साथ 4,500 रुपये भेज दिए, सर वो फीस रह गई थी, आपने पूछा ही नहीं, हमने हमारे पास थे भी नहीं, हमने जमा करा दिया। इट्स ओके बेटा, लेकिन रेगुलर पढ़ लेते वो। तो बेटा आप लोग रेगुलर रहे, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। एंड रिजल्ट, ठीक है। साउंड, सबसे पहली जिंदगी में अब आप अपना पेपर तैयार कर लें। आपको फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के चैलेंजेस मिलना शुरू हो रहे हैं कि हमें कहां से स्टार्ट लेना है, क्या इंप्रूव करना है। सबसे पहला पिलर है साउंड। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस? आप में से कितने लोग हैं जो अपने प्रोनाउंसिएशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं? सर आई वांट टू इंप्रूव माय प्रोनाउंसिएशन, sir I'm really weak in pronouncing words, sir it's really difficult, there are millions, trillions, billions of words, sir it's not possible to improve pronoun। हो ही नहीं सकता सर। अबे 6 दिन में होगा, 6 दिन के अंदर होगा। वो लोग 3 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोग पता शायद वो अपनी राय का इजहार ही नहीं कर रहे। कितने लोग चाहते हैं कि 6 दिन के अंदर प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाए? मैं 6 डेज चैलेंज दे रहा हूं आज, 6 डेज चैलेंज। यू कैन इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन विद इन 6 डेज। लेकिन अगर आप चाहे तो, मेरी चाह से कोई फायदा नहीं है। मैं देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं सारे, मुझे इतना यकीन है अपने पढ़ाने के ऊपर कि मैं सारे काम कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं है तो अपने स्टूडेंट्स पर। अरे सारे इतनी जिंदगी मसला भी, खाना भी बनाना है, रोटी बनानी है, बच्चे स्कूल से आने वाले, यार तो टाइम मैनेज करें। आप रात को 12 बजे पढ़े, मेरा भी पूरा दिन बिजी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज के लिए टाइम निकालता हूँ, ठीक है। सो सर कैसे इंप्रूव होंगे प्रोनाउंसिएशन? बात आज सिर्फ साउंड के ऊपर ही बात हो रही है। 26 लेटर्स बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, देयर आर 26 लेटर्स।
लेकिन आपको पता है उसकी साउंड्स कितनी है? हाउ मेनी साउंड्स डू वी हैव? 44. Oh my God. There are 44 sounds in English language. इन इंडिविजुअल साउंड्स को आपको सीखना है, टास्क 1। और ये आपका चैलेंज है 3 दिन का, 3 days चैलेंज। 3 days चैलेंज। मैं जो चैलेंज दे रहा हूँ ना, इसको बड़ा सीरियस ले लीजिएगा तमाम स्टूडेंट। 3 days चैलेंज। हमें 3 days चैलेंज क्या करना है? हमें इंडिविजुअल साउंड्स को इम्प्रूव करना है। अच्छा, मेरे जरा मैं पिछले 2 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हुए हैं। अब ये मुमकिन नहीं हो पाता कि मैं अपनी हर बात आपको लाइव सेशंस में दे दूं, लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने रिकॉर्ड की है, कभी ना कभी अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशंस में। है तो इंडिविजुअल साउंड्स के ऊपर मेरा लेक्चर अवेलेबल है ना, वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। एवरीबडी मस्ट लिसन टू इट, और उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपको दूंगा। 3 दिन तक आपको उस लेक्चर को सुनना है बार बार, और उससे इंप्रूव क्या होगा? उससे इंप्रूव होंगे आईपीए। सर ये आईपीए क्या होते हैं? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। सर ये कितने होते हैं और ये क्या होते हैं? बेटा ये 44 सिंबल्स होते हैं। कितने सिंबल्स होते हैं? 44 सिंबल्स, एंड दे रिप्रेजेंट साउंड। दे रिप्रेजेंट साउंड। आपने कभी इस बारे में जी बेटा? The form of IPA. आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। मैं भी स्क्रीन पर आ जाएंगे आपके पास, वो अभी आप की स्क्रीन पर आएंगे। कभी आपने ये सोचा है कि बट और कुट? कुट सही बोल रहा हूं मैं? पुट, बुट, कुट। और अगर कट, बट तो पट। सोचा कभी? अगर आपने पुट बोला तो फिर आगे बुट और कुट है, और अगर आपने कट और बट बोला तो फिर पट होगा। कभी आपने इस बात को महसूस किया है कि इसके बीच में कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है? ये चक्कर क्या है? अगर आप एक वर्ड बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल OUGHT, JUDGE, तो ये ऊपर जब मैं वर्ड पढ़ता हूँ, आसिया पढ़िएगा क्या है, सबा पढ़िएगा, पहला वर्ड ये क्या लिखा है मैंने? OUGHT पढ़िए। ouch, ouch। और JUDGE, Judge. Judge. judge, जज, डी का गया, जज, जज, जडज, जुड़ज। एक गरीब आदमी को ऐसे ही पढ़ेगा जैसे ऊपर वाला एक गरीब ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पढ़िएगा दोबारा, सब दोबारा पढ़िएगा प्लीज। ouch, वाह, रिकॉर्ड हुआ ये। अब ये प्रॉब्लम देखो, दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कैसे हल होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो लेटर्स है वो साइलेंट है? आखिरी वाला वर्ड पढ़िएगा, DEBRIS। Debris. कौन हमें बताएगा कि ये डेब्री लिखा हुआ है? कौन हमें बताएगा कि ये जो ऑग है ये ऑट लिखा हुआ है? ऑट टू। इसके आगे अमूमन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आई ऑट टू गो, नॉट ऑगट, ऑट टू। ये आपकी गलती नहीं है, ये हमारी नॉलेज की कमी है। हमें कहां से पता चलता है कि इस लेटर को नहीं प्रोनाउंस करना है, दिस इज साइलेंट? नहीं बताता, लेकिन आपको आज पता चलेगा कि ये आपको कौन बताएगा? IPA, जब आपको इसकी नॉलेज होगी। तो पूरा बहुत तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है मेरा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। मैं कोशिश करता हूँ उसका चार्ट आपकी स्क्रीन पे शेयर करूं, ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये है IPA, जिसके लेक्चर को हमें सुनना है,
सर के, और इस इंडिविजुअल साउंड्स को हमें याद करना है। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये चार्ट आपको बेटा जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, these are इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। अभी पूरा खुल जाएगा ये। या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। These are symbols। आप में से कितने लोगों ने जिंदगी में आज से पहले ये चार्ट देखा था? देखा है? अगर देखा था तो टिक लगा दीजिए, नहीं देखा तो क्रॉस लगा दीजिए। तो ये ना हमने कभी नहीं देखा, और यही आपकी बेसिक है। कोई नहीं पढ़ाता, मैं कहता हूँ भाई पहले स्टूडेंट्स को बताओ तो कि भाई बेसिक क्या है, जभी तो प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होंगे। इंडिविजुअल साउंड इंप्रूव करनी है पहले। मैं आपको इसका एक सॉफ्टवेयर का लिंक भी भेजूंगा, वो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में। उस एप्लीकेशन की अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप एक सिंबल पे क्लिक करेंगे, आपको वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मैं फिर भी आप लोगों के इस लेक्चर को और खूबसूरत बनाता हूँ। आपको एक बहुत खूबसूरत सी टीचर अभी हमें ज्वाइन करेंगी और आपको वो ये सारे सिंबल्स पढ़कर दिखाएंगी। आप उनको सुन लें, आप कहेंगे वाह सर आपने जिंदगी आसान कर दी। ये लीजिए। अमेरिका से मिस लूसी को कनेक्ट कर, अगर मिस लूसी ना हो तो मिस जेसिका को कनेक्ट करवा दीजिए। आ रही है। Miss Jessica, where are you? Sorry, Miss Jessica, अभी आ रही है। Yeah. Miss, wait a minute, students are here with us, please. ये लाइव हम मिस जैसा के साथ कनेक्ट हो गए। Rollins Center for Language and Literacy. Thanks for joining You us. probably already know the English language has very distinct sounds, or phonemes, that we combine in different ways to make words. In this video, we are going to demonstrate how to pronounce each of the individual phonemes. Often, we accidentally add an extra or schwa sound to the end of consonants. If students hear this and imitate it, it may then be reflected in later reading and writing tasks. To prevent this, it is important to produce only the phoneme itself without any additional sounds. An example of this is the sound P. Sometimes when teachers are trying to emphasize or isolate a phoneme, they say P. Instead, focus on producing just the phoneme itself. We'll start with the consonant phonemes. You'll see the associated letter or letter combination, also known as a grapheme, on the screen as I say the sound. Ready? Here we go. As in banana. D as in dinosaur. As in fish. As in guitar. As in hand. J as in jelly. As in car. U as in leaf. As in Monday. As in nail. As in the end of the word sing. As in pumpkin. As in rain. As in sun. G as in the middle of treasure. As in turtle. As in volcano. W as in watch.
as in yo-yo, as in zip. Some graphemes, such as Q and X, are composed of two phonemes. For example, Q makes the sound, and X makes the sound. The next phonemes are considered to be digraphs, where two letters make one sound, as in child, as in shoes, as in the middle of mother, as in third. Make sure students hear you pronounce phonemes correctly. You're modeling the language that they need to independently decode and write words. Just like the consonants, the English language has a wide variety of vowel phonemes with their own distinct sounds. I'll model each sound and the grapheme will be shown on the screen below. A, as in the first sound in apple. E, as in the first sound in elephants. I, as in the first sound in igloo. A, as in the first sound in octopus. As in the first sound in umbrella. A, as in the middle sound in rain. As in the final sound in saw. E, as in the final sound in tree. I, as in the middle sound in light. O, as in the middle sound in boat. U, as in the first sound in uniform. Oo, as in the middle sound in mood. As in the middle sound in book. Ow, as in the final sound in cow. Oi, as in the final sound in boy. There are also R-controlled vowels. Thank you very much, Miss. We will connect you later in our classes. Thank you very much. आपने देखा किस तरह से एक एक वर्ड को ये आपको प्रोनाउंस करके सिखा रही है। आपका 3 days का ये चैलेंज है। अच्छा, इसने चीजों को और आसान कर दिया था। इसने इन सिंबल्स को नहीं लिखा। जो सिंबल्स अभी आपने यहाँ पर देखे, जिस तरह से मैंने भी आपको ये दिखाया था, ये वाला चार्ट, उसने एग्जैक्टली ये सिंबल नहीं लिखा। उसने ये जब चा बोला, जैसे ये लिखा हुआ है चीज, तो ये सिंबल बेसिकली साउंड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये सिंबल नजर आ रहा है आपको, चीज। यहाँ पर ये देखिए DZ आपको सिंबल नजर आ रहा है, ये साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं ज। तो सर हमें ये कौन बताएगा? ये वो बताएगा जो अभी आपके व्हाट्सएप के ऊपर मेरी एक वीडियो आपसे मैं शेयर करूंगा, जिसमें मैंने इस चार्ट को पहले एक्सप्लेन किया, फिर हमें मिस जैसिका ने ज्वाइन किया, फिर उन्होंने भी बच्चों को एक्सप्लेन किया। देन आई विल आल्सो सेंड यू सम रिलेटेड वीडियोस। 3 दिन के अंदर वो वीडियोस लाजमी तौर पर देखनी है। ये चीज अगर 3 दिन में पक्की हो गई तो फिर मैं अगले चैलेंज की तरफ आऊंगा। देखो, मेरे साथ काम करते रहो, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे चलते रहो, क्योंकि ये जो ड्राइवर आपके साथ है ना बेटा, ये 18 साल से इसी सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहा है। उसे पता है कि ये शॉर्टकट है, आप इस रास्ते से निकल जाओ, यू विल अचीव योर गोल, you will achieve your destination, you will reach your destination on time. So first step is to improve your pronunciation, and for improving your pronunciation, first you have to work on your individual sounds, right? एक assignment अभी मैं आपको अंदर आके देखिए वो लिखता है। जी बेटा, 1 मिनट जरा हम सेम का एक पतीला ही ले ले। क्लास चल रही है बेटा, क्लास इज गोइंग ऑन। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे हैं एक और, ये आपको हम देंगे 6 days का चैलेंज। एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जब आप इंडिविजुअल साउंड पे काम कर लेंगे तो फिर आपको एक 6 days का चैलेंज मिल रहा है। फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन इंडिविजुअल साउंड्स। जब इंडिविजुअल साउंड आपकी अच्छी हो जाएगी, फिर मैं आपको वर्ड लेवल पर लेकर आऊंगा। वर्ड लेवल के लिए 6 days में आपको दे रहा हूं कि इन 6 days यू हैव टू इंप्रूव योर वर्ड प्रोनाउंसिएशन। जब वो एक वर्ड बोलेगा तो आपकी इंडिविजुअल साउंड्स पहले अच्छी हुई हुई है, जब वो वर्ड बोलेगा तो आपको उस वर्ड के अंदर वो सारी साउंड सुनाई दी जाएगी। देन यू विल ट्राई टू
प्रोनाउंस इन द सेम वे। इसने बड़ी एक अच्छी बात कही थी, आपने अंग्रेजी में कही थी, इसलिए शायद आपको समझ ना आई हो। कहती है कि जब आप बच्चों के सामने कोई भी साउंड प्रोड्यूस करें तो कोशिश करें कि उसको बिल्कुल सही अदा करें, क्योंकि वो बच्चा आपको सुनकर ही डिकोड करेगा, आपको सुनकर ही बोलेगा। So that's why I especially connected with Miss Jessica from America, and she pronounced all the words for you because she's a native one and she can pronounce better than us, and she can pronounce in exact way. कुछ चीजें ऐसी होती है, देखिए जो लोकल स्पीकर्स आपको पढ़ा भी देंगे ना तो वो बात नहीं आएगी जब तक आप गोरे को नहीं सुनेंगे, खासतौर पर प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर। तो लोकल टीचर का लेक्चर आई नेवर एंजॉय। I always enjoy native teachers lecture when we talk about pronunciations. ठीक है? अच्छा, अब ये 3 days के चैलेंज के ऊपर भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आपको जा करके सिर्फ YouTube पे लिखना होगा 3000 कीवर्ड। मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा, लेकिन ये चैलेंज आपका 3 days के बाद स्टार्ट होगा और इसके लिए 6 days है। 3000 कीवर्ड्स आपने लिखा, जैसी YouTube के ऊपर आपके सामने देखिएगा। My job is to make college easier because students have a lot of fun. Alternative. These are 3000 words. कितनी देर में सुन लेंगे आप? 2 घंटे के अंदर अंदर। You will listen in 2 hours. गोरा ये कहता है कि if you listen to these 3000 words, they are good enough for you. ये 3000 वर्ड्स को डिक्शनरी में से एक्सट्रैक्ट किया गया है। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी मौजूद है, उसका 10th एडिशन आ गया अब तो मार्केट के अंदर। मैंने 8th एडिशन लास्ट टाइम खरीदा था, 2021 के अंदर 10th एडिशन आ गया। तो अगर आपके पास वो नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं उसका सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो पेड है। मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपये में आपको मिल जाएगी, वो बहुत अच्छी डिक्शनरी है वो आप। लेकिन हम अभी सस्ती बातें कर रहे हैं, फ्री बातें कर रहे हैं। अचीवमेंट, अब वो कैसे पढ़ रही है सुनिएगा, ये सुनना है। Absorb, abuse, academic, accent, accept, acceptable, access, accident, accidental, accommodation, accompany, according to, account, accurate, accuse, achieve, achievement, acid, acknowledge, acquire, across, act, action, active, activity, actor, actress, actual, actually, add, adapt, add, addition, additional, address, ठीक है बेटा? adequate, जब आप लोग वर्ड इंडिविजुअल साउंड में काम कर लेंगे विद इन 3 days इंशाल्लाह, देन यू विल स्विच टू वर्ड लेवल। और जब वर्ड लेवल पर हो जाएंगे तो फिर आप लोग किस लेवल पर आ जाएंगे, जल्दी से बताइए? फिर आप लोग आ जाएंगे सेंटेंस लेवल पर। किसी का कोई सवाल? पहला टारगेट आपको मिल गया। पहला टारगेट आपको मिल गया। सर सेम वीडियो रोज सुनना है 3 दिन के लिए। अब आप ये सोचोगे सर फिर सेंटेंस लेवल पर हम कैसे जाएंगे? बेटा आज की क्लास साउंड के हवाले से चल रही है। संडे आपको अब जितने लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो पहले 3 दिन किसके ऊपर काम करने वाले? इंडिविजुअल साउंड्स पर। इंडिविजुअल साउंड के बाद आपको किस पे काम करना है? सर ने आपको बता दिया है। आपके पास जो चैलेंज है वो वर्ड लेवल का चैलेंज है।
उसके बाद आपके पास जो एक और चीज आ रही है वो है आपके पास टंग ट्विस्टर्स। देखो, अगर स्टूडेंट को गाइड कर दिया जाए ना तो वो सारी चीजें कर सकता है। ये पूरे मंथ का टारगेट ये है, प्रोनाउंसिएशन, साउंड, फर्स्ट मंथ का टारगेट है। लेकिन मैं कहता हूँ इसके अंदर भी मैंने आपको एपिसोड्स में बांट दिया। First 3 days individual sounds, then word level, and then you will come towards your sentence level. अब आप देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है। Hi, welcome back, everybody. Good to see you. If it's your first time, Thank you very welcome to much. English vocabulary and pronunciation, where 3 times per week we have a new video Okay, that sir. helps you to improve your English language communication skills. Sometimes vocabulary, sometimes pronunciation, sometimes descriptions, verb tense, adjectives, everything that can help you be a better English speaker. So today's topic, something a little different, thought I would try, is tongue twisters, 25 tongue twisters to practice pronunciation. So sometimes certain sounds are difficult to pronounce, and it's important to build muscle memory in your mouth so that you can speak clearly, so that you're understood when you are trying to communicate. You might have an accent, and you want to soften that accent to speak more clearly and more accurately. So today, we're going to review 25 tongue twisters. So remember, speak slowly and clearly. And what I will do is read the phrase first. And then I want you to repeat the phrase after me. Very simple. Are you ready? Here we go. Unique, New York. Unique, New York. Say that. Yes. Say. बेटा जैसा सर कह रहे हैं वैसा करें ना। He is from London, Sir Peter. You have to repeat after him. English में उन्होंने कहा है, but I'm just helping you in translation. क्या कहा उन्होंने? मेरे बाद जो जैसा मैं कहूँ मेरे बाद रिपीट करें. So please repeat. Yes, Rafia. New York. Unique New York. Yes, Sabah. Unique New York. Sir, exact word is pronunciation or pronunciation. Repeat after me. Pronunciation. 3 free throws. 3 free throws. Yes. Three free throws. Next. Three free throws. Say it 3 times. Say it 3 times. 3 free throws. 3 free throws. 3 free throws. Say it 3 times fluently. Don't stop after every word. 3 free throws. 3 free throws. Three free throws. Three free throws. Three free throws. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Yellow leather. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Red leather. Red leather, yellow leather. 3 times. Say it 3 times. Say it 3 times. Red leather, Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. yes, red leather. ठीक है, अब आपने जब आप यहाँ पर देखें, जब आप इसके ऊपर आपने काम कर लिया, then you will, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Reading practice, improve your pronunciation in English pronunciation. अभी ये जो लड़की है सबसे खूबसूरत भी है और सबसे अच्छा पढ़ाती है. अब आप जरा Thank you so much, guys, for watching my video. If you liked it and if you want to see other videos, please show me your support. Click like, subscribe to the channel, put your comments below, and I have share the already video. subscribed your channel. Bye.
Okay. अब देखिए Can आपको you watch my mouth and repeat after me now? Eh. 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 repeat. Eh. Okay, let's now practice with a word. Bed. Can you repeat after me? Bed. 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 Good job. Bed. Moving on to the bed. sound eh. Now your tongue is a little higher than for the eh sound, and you should stretch out your lips a little. And it's a short sound. Eh. So let's practice. Repeat after me. Eh. 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 Let's practice with a word. Bid. Watch how my mouth moves and repeat after me. Bid. Big. Bed. Bid. Big. Big. Bid. Bed. मजा आया? जिंदगी में कुछ Yes, नया sir. नया सीखने को मिला? लग रहा है कि Yes, sir. Yes, अभी sir. तो पार्टी शुरू हुई है। बेटा ये मैं भी आपको कुछ रिलेटेड वीडियो सेंड करूंगा, और जो सर ने आपको टारगेट दिया है इंडिविजुअल साउंड्स का, पहले सर का एक लेक्चर सुनना है, फिर उसके लेक्चर को सुनने के बाद वो रिलेटेड वीडियोस को आपको देखना है। 3 डेज का चैलेंज है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर आपने ये 3 दिन में, देखो अपने आप से सिंसियर रहोगे ना बेटा, यू विल इम्प्रूव faster and faster and smarter. This is called smart learning. हर चीज हम आपको पढ़ाते नहीं है, जो लोग हमें अपने काम कर चुके हैं उनके मटेरियल को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है? So thank you very much for today. Miss Mariam will join you, and I am signing off. Assalamu alaikum.